Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करेंगे इंग्लिश क्लास 12th का चैप्टर डीप वाटर बाय विलियम डोगलस। अब जानते हैं ऑथर के बारे में। William Douglas was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and a friend to the president. Douglas was leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest surviving justice in the history of the court. The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. It reveals how a young boy, himself William Douglas, nearly drowned in a swimming pool. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcomes it. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was treacherous. Mother continually warned against it, and it kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. I got a pair of water wings to went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ऑथर हमें बताते हैं कि वो जब 10 या 11 इयर्स के थे तब उन्होंने स्विमिंग सीखने का डिसीजन लिया था और उन्होंने याकिमा जो एक जगह है वहां पर एक YMCA पूल को ज्वाइन किया था स्विमिंग सीखने के लिए। याकिमा वहां की एक फेमस रिवर का नाम भी है जो कि एक डेंजरस रिवर थी और ऑथर की मदर उन्हें कॉन्टिन्यूसली वार्न किया करती थी और उन्हें बताती रहती थी याकिमा रिवर के ड्राउनिंग केसेस के बारे में ताकि ऑथर उधर ना जाए। जो YMCA पूल था वो डेंजरस नहीं था और वो ऑथर के लिए सेफ था। YMCA पूल शैलो था और सिर्फ 2 या फिर 3 फीट डीप था और एंड से 9 फीट डीप था। उधर ऑथर ने स्विमिंग सीखने के लिए एक पेयर ऑफ वाटर विंग्स खरीदे थे जो कि उनकी स्विमिंग सीखने में हेल्प करते थे। वहां ऑथर को बहुत अजीब भी लगता था पूल में जाते हुए क्योंकि उनकी जो टांगे थी वो काफी पतली थी और वो बहुत स्किनी थे और उन्हें वहां पर नेकेड चलना बहुत अजीब सा लगता था। लेकिन क्योंकि उन्हें स्विमिंग सीखनी थी इसलिए वो अपने सारे प्राइड को इकट्ठा करके वहां पर स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं। From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. The breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. तो यहाँ पर ऑथर एक इंसिडेंट के बारे में शेयर करते हैं और बताते हैं कि उन्हें शुरू से ही पानी पसंद नहीं था
और उन्हें एक एवर्जन था, यानी कि एक डिसलाइकिंग थी वाटर को लेके, क्योंकि जब वो 3 या 4 इयर्स के थे तब वो एक बार अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए थे और वहां पर उनके फादर एक सर्फ बोर्ड पे खड़े थे। तब ऑथर ने अपने फादर को बहुत अच्छे से पकड़ रखा था, लेकिन फिर भी जब वहां पर वेव्स आई तब ऑथर पानी में गिर गए थे और वो वेव्स बिल्कुल ऑथर के ऊपर चढ़ गई थी और तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो पानी के अंदर बिल्कुल डूब गए हैं, बरी हो गए हैं। और इसीलिए ऑथर को सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी उस टाइम, और वो उस टाइम आउट ऑफ ब्रेथ भी हो गए थे और बहुत ज्यादा डर गए थे। तो उस इंसिडेंट के बाद ऑथर के अंदर एक डर सा बैठ गया था पानी के लिए। My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. But in a little while I gathered confidence. I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. I went to the pool when no one else was there. The place was quiet, the water was still, and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen, with legs and arms that showed ripping muscles. He yelled, "Hi, Skinny, how'd you like to be ducked?" With that, he picked me up and tossed me into the deep end. तो जब ऑथर ने YMCA स्विमिंग पूल ज्वाइन किया था तो उनकी सारी मेमोरीज, जो उनकी अनप्लेजेंट मेमोरीज थी, वो वापस आ गई थी उनके दिमाग में और उन्हें याद आ जाता है उनका बचपन का डर। फिर वो स्कूल में कुछ दिनों तक रहने के बाद ऑथर को धीरे धीरे पानी में रहने का कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, लेकिन वो अपने वाटर विंग्स की हेल्प से पेडल करते हैं और दूसरों को देखकर उन्हें कॉपी करने की कोशिश करके स्विमिंग सीखते हैं। उन्होंने 2 से 3 दिन ऐसे प्रैक्टिस की थी और फिर उनको पानी में इजी फील होने लग गया था और कंफर्टेबल फील होने लग गया था। लेकिन ऐसे ही उस टाइम एक मिस हैपनिंग हो गई थी, यानी कि एक मिस एडवेंचर हो गया था, और वो ये था कि जो ऑथर के साथ मिस हैपनिंग होती है वो तब होती है जब वो एक बार पूल में जाते हैं, तब वहां पर कोई नहीं होता और पूल बिल्कुल शांत होता है और वाटर भी बिल्कुल स्टिल था, यानी पानी इतना शांत था कि जो स्विमिंग पूल्स की जो टाइल थी वो भी ऑथर को दिखाई दे रही थी, और इसीलिए ऑथर काफी देर वहां पर रुक गए थे और वो बहुत ज्यादा डरे हुए भी थे, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि पूल में अकेले जाऊं तो अगर मेरे साथ कुछ हो जाए, तो इस डर से वो वहां पर अकेले नहीं जाना चाहते थे और इसीलिए वो पूल के साइड में जाकर बैठ जाते हैं और किसी के आने का वेट करते हैं ताकि उसके बाद वो स्विमिंग कर सके। लेकिन तब वहां पर एक बिग ब्रूजर आता है, यानी कि एक हट्टा कट्टा लड़का आता है जो कि 18 इयर्स की एज के अराउंड का था और उसके चेस्ट पर काफी थिक बाल भी होते हैं और उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो काफी अच्छा था, उसकी मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो वो एकदम से पीछे से चिल्लाता है, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, यानी कि वो ऑथर को चिढ़ाता है कि तुम पूल में कैसे तैरना चाहोगे, और ये कहते ही वो ऑथर को उठाकर पूल के डीप साइड में फेंक देता है। I landed in a sitting position, swallowed water, and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down, I planned, when my feet hit the bottom, I would make a big jump to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. It seemed a long way down,
Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my legs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would bob to the surface like a cock. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water. Water that had a dirty yellow tint to it. I grew panicky. I reached up as if to grab a rope, and my hands clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. तो इस पैराग्राफ में ऑथर कहते हैं कि क्योंकि ऑथर पूल के कॉर्नर पर बैठे हुए थे, इसलिए वो पूल में सिटिंग पोजीशन में ही लैंड करते हैं, यानी कि गिर जाते हैं, और वो काफी ज्यादा पानी निगल लेते हैं क्योंकि वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होते पूल में गिरने के लिए, और उन्हें स्विमिंग भी सही से नहीं आती थी, और इसीलिए वो पूल में नीचे सैंक करने लग जाते हैं और डूबने लग जाते हैं। ऑथर काफी ज्यादा देर तक वहां पूल में रहते हैं और वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो इतना भी नहीं डरते कि वो कुछ सोच ना पाए। वो जब डूब रहे होते हैं तो वो एकदम से एक प्लान बनाते हैं, और वो प्लान ये होता है कि जब वो पूल के बॉटम पर पहुंच जाएंगे तब वो वहां से एक बड़ी सी जंप करेंगे और बड़ी सी छलांग लगा लेंगे पानी के सरफेस पर। और जब वो पानी के सरफेस पे आ जाएंगे तो जैसे ही वो वहां आएंगे तो वो वहां पर फ्लैट होके लेट जाएंगे, जैसे कि लोग तैरते टाइम करते हैं, और फिर वो पेडल करते हुए पूल के कॉर्नर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जब वो नीचे जा रहे होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा डीप है और सारे में पानी ही पानी है। उन्हें वो 9 फीट भी 90 फीट जैसा लगता है, और ऑथर के जो लंग्स होते हैं वो बर्स्ट करने वाले होते हैं, और जैसे ही वो बॉटम में पहुंचते हैं वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हैं और एक बड़ी सी जंप लगाते हैं ऊपर की तरफ, और सोचते हैं कि वो वैसे ही छलांग लगाएंगे तो वो एक कॉक की तरह पूल के सरफेस पर चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं होता। वो ऊपर की तरफ बहुत स्लोली जाते हैं, और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें सारे में पानी पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखता, और ऑथर को पानी भी येलोइश लगता है उसकी गंदगी की वजह से। उस टाइम ऑथर बहुत ज्यादा पैनिक करते हैं और वो बहुत घबरा जाते हैं, और वो ऊपर की तरफ अपने हाथों से एक रोप यानी रस्सी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पानी के अलावा और कुछ पकड़ ही नहीं पाते क्योंकि वो पानी में ही थे। और वो चिल्लाने की कोशिश भी करते हैं मदद के लिए, लेकिन उनके मुंह से कोई भी साउंड नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि वो पानी में होते हैं और पानी में साउंड नहीं आती। Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. I failed at the surface of the water. Swallowed and choked, I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. I had lost all my breath. My lungs ached. My head throbbed. I was getting dizzy. But I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come out like a cock to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms, and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. तो उनकी जो आईज और नोज होती हैं वो पानी के सरफेस के ऊपर आ जाती है अब, लेकिन उनका माउथ पानी में ही रहता है, और वो जोर जोर से अपने हाथ पैर हिलाने लगते हैं, लेकिन फिर भी उससे कोई भी फायदा नहीं होता, और वो और भी ज्यादा पानी स्वेलो कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो चोक कर जाते हैं, और वो अपने लेग्स को सरफेस पर लाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन वो उन्हें बहुत ज़्यादा हैवी लगते हैं और लाइफलेस लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पैरों पे किसी ने डेड वेट्स बांध दिया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा भारी वेट बांध दिया हो। वो बिल्कुल पैरालाइज जैसा फील करते हैं और वो अपने पैरों को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे होते और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई एक ग्रेट सी फोर्स नीचे की तरफ खींच रही हो। इसीलिए वो जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन क्योंकि वो पानी में होते हैं तो उनकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं देती और फिर से वो पानी की डेप्थ में जाने लगते हैं। फिर ऑथर कहते हैं कि एज आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स। यहाँ पे इसका मतलब है कि वो अपनी सारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बहुत बुरे सपने से कोई लड़ता है और जैसे कि बुरा सपना भी एक इररेजिस्टिबल फोर्स की तरह होता है, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन अब तक उनकी जो बॉडी है उसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुका था क्योंकि वो सांस तो ले ही नहीं पाए और उनके जो लंग्स है वो बहुत बुरी तरह दर्द कर रहे थे और पानी से भर गए थे। उनकी हार्ट बीट भी बहुत ज्यादा तेज थी और वो डिजी फील करने लग जाते हैं अब और वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो तभी उनको अपना प्लान भी याद आता है कि जैसे ही वो बॉटम पे जाएंगे वो एक कॉर्क की तरह सरफेस पे जंप करेंगे और फिर पानी के सरफेस पे फ्लैट होके लेट जाएंगे और अपने हाथ पैरों को चलाकर पूल के एंड तक पहुंच जाएंगे सेफली। I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. And then sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. I was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. And then, in the midst of the terror, came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last, I felt the ties under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had, but the jump made no difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took an even deeper hold on me, like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move. My legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother, but nothing happened. तो यहाँ वो कहते हैं कि वो सिर्फ नीचे की तरफ ही जा रहे थे और जैसे ही उन्होंने अपनी आंखों को खोला तो उनको सारे में सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा था जो कि येलो कलर का था और उन्हें वाटर भी अब काफी ज्यादा डार्क लगने लगा था क्योंकि वो अनकॉन्शियस होने लग गए थे। और अब जो विलियम है, हमारे ऑथर जो हैं, वो बहुत ज्यादा टेरराइज हो जाते हैं। उनको एक शीर स्टार्क टेरर सीज कर लेता है, यानी कि एकदम से उनको एक एक्सट्रीम डर कैप्चर कर लेता है जिसको कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है और उसे कोई नहीं समझ सकता जब तक वो उसे एक्सपीरियंस ना कर ले। यहाँ पर जिस टेरर की ऑथर बात कर रहा है वो है टेरर ऑफ डेथ। तो ऑथर पानी के अंदर बहुत बुरी कंडीशन में होते हैं और वो पैरालाइज जैसा भी फील कर रहे होते हैं और बहुत रिजिड हो जाते हैं। तो वो चिल्लाने भी लगते हैं लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उनका गला ही फ्रीज हो गया है और उनकी सिर्फ हार्ट बीट और जो उनका सर दुख रहा था, सिर्फ उसी से उन्हें एहसास हो रहा था कि वो अभी भी जिंदा है। और इसी तरह की फीलिंग के बीच में उनको अपना प्लान याद आता है कि जैसे ही वो बॉटम को हिट करेंगे तो उन्हें टाइल्स फील होती हैं और वो कहते हैं कि माई टोज रीच्ड आउट टू एज इफ टू ग्रैब देम, यानी कि उनके जो टोज हैं वो इतनी देर से टाइल्स को ही ढूंढ रहे थे ताकि वो उन्हें पकड़ सके। और फिर बॉटम पे पहुंचते ही वो एकदम से ऊपर की तरफ जंप करते हैं अपनी सारी एनर्जी से, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अभी भी पानी के अंदर ही होते हैं।
उन्होंने अपने आसपास देखा हेल्प के लिए कि कोई रोप, लैडर या कोई वाटर विंग्स कुछ भी उन्हें मिल जाए जिससे वो बच सके, लेकिन वहां पे पानी के अलावा उनको कुछ नहीं दिखता। और उनका जो डर था वो भी और ज्यादा इंटेंस हो गया था, और उन्हें उनका डर एक इलेक्ट्रिक शॉक की तरह लगता है जो कि उनकी सारी बॉडी में फैल रहा था। वो अपने हाथों को और पैरों को जोर जोर से हिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, और वो मदद के लिए चिल्लाते भी हैं अपनी मदर को बुलाने के लिए, लेकिन किसी को नहीं सुनता और कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता।